حضرت مخدوم اشرف کے والد گرامی حضرت سید ابراہیم، ایک دن حضرت ابراہیم اپنے براندے پر گھر میں دونوں ان کی اہلیہ اور وہ بیٹھے ہوئے ہیں، اسی درمیان میں ایک مجذوب صفت بزرگ، ان کا بھی نام تھا مجذوب ابراہیم، وہ پہنچے، کہا ابراہیم اس طرح غمزدہ کیوں ہو، پریشان کیوں ہو، آخر اتنا رنجیدہ کیوں ہو؟ کہا کہ حضور میں اولاد کی خواہش رکھتا ہوں لیکن میری کوئی اولاد نہیں ہے۔ تو حضرت مجذوب ابراہیم فرماتے ہیں کہ سید ابراہیم بادشاہ سلامت تجھے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ تجھے دو اولاد عطا فرمائے گا، دو اولاد عطا فرمائے گا، اور ایک کا نام اشرف رکھنا اور دوسرے کا نام عارف رکھنا، اور یہ نبی نے فرمایا ہے۔ وہ مجذوب صفت بزرگ ابراہیم کہہ رہے ہیں یہ نبی نے کہا ہے اللہ تعالیٰ تجھے دو اولاد عطا فرمائے گا، لیکن جو بڑا ہوگا اس کا نام اشرف رکھنا، اور وہ اشرف دین کی تبلیغ کرے گا، دین کی تبلیغ کرے گا۔ جب حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ تعالی عنہ ماں کے شکم میں جلوہ افروز ہوئے، جب ان کی ولادت قریب ہوئی تو پورے شہر سمنان میں یہی آواز آتی تھی، لوگوں ہوشیار ہو جاؤ، سامدھان ہو جاؤ، کہ اس لیے کہ اشرف زمانہ تشریف لانے والے ہیں، اشرف زمانہ تشریف لانے والے ہیں۔ اب پورا شہر یہی سوچ رہا تھا آخر وہ اشرف زمانہ کون ہوگا، آخر کس کے بارے میں یہ اعلان کیا جا رہا ہے، منادی ندا دے رہا ہے۔ تو صبح ہونے کے بعد پتہ چلا کہ حضرت سید ابراہیم کے یہاں ایک لڑکا پیدا ہوا ہے جس کا نام اشرف ہے، اور اس کی ولادت کی خوشی اور اس کی ولادت کا ڈنکا پورے شہر میں رب کائنات اعلان فرما رہا تھا۔ یہ شان میرے مخدوم کا ہے، آنے سے پہلے رب نے اپنے محبوب کے ذریعہ بشارت دے دی ہے۔ اور جب میرے مخدوم اشرف کی 7 سال کی عمر ہوئی، 4 سال 4 مہینہ 4 دن کی عمر میں حضرت سید ابراہیم نے اس کی بسم اللہ خوانی کروائی، بڑے دھوم دھام سے کروائے، اور 7 سال کی عمر میں حضرت سید مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ تعالی عنہ حافظ قرآن، وہ بھی 7 قرات کے ساتھ حافظ قرآن بن گئے۔ 7 سال کی عمر میں حافظ قرآن بننے کے بعد حضرت سرکار مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی اب درس نظامی کا پڑھائی کرنا شروع کر دیے، عالم بنے، فاضل بنے، مفتی بنے، محدث بنے، محقق بنے، سب بنے۔ 14 سال کی عمر میں حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی نے پوری دنیا کے علوم و فنون سے ماہر ہو گئے، اور 14 سال کی عمر میں سرکار مخدوم اشرف کی دستار فضیلت دی گئی ہے، اور سرکار مخدوم اشرف کے اس دور کے ممتاز العلماء میں سے شامل ہو گئے۔ یہ میرے مخدوم اشرف ہے، حضرت سرکار مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ تعالی عنہ جب 15 سال دستار فضیلت کے بعد جب 15واں سال میں قدم رکھے تو ان کے والد گرامی حضرت سید ابراہیم کا وصال ہو گیا، اور سلطنت کا باغ دور حضرت سید مخدوم اشرف کے سر پر کاندھے پہ آ گیا۔ 15 سال کی عمر میں سلطنت پہ تخت نشی ہوئے، اور ایسی عدالت کرتے تھے، ایسا انصاف کرتے تھے کہ جس میں حضرت عمر فاروق کی عدالت نظر آتا تھا۔ ایک مرتبہ حضرت سید مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ تعالی عنہ جنگل نکل گئے شکار کرنے کے لیے، اپنے لوگوں کے ساتھ جماعت کے ساتھ گئے، 2-4-5 دن ادھر ہی لگ گیا، ادھر ہی رب کی عبادت کرتے تھے، شکار کرتے تھے۔ اسی درمیان میں ایک ضعیفہ چلی آ رہی ہے سرکار مخدوم اشرف کی بارگاہ میں، تو وزیروں نے روکا کہ بادشاہ سلامت کے پاس مت جاؤ، آخر معاملہ کیا ہے مجھے کہو۔ تو سرکار مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی دیکھ رہے تھے، حضرت سرکار مخدوم اشرف فرماتے ہیں کہ اسے چھوڑ دو، آنے دو، وہ میرے پاس آ رہی ہے، آنے دو۔ وہ ضعیفہ جاتی ہے مخدوم اشرف
बारगाह में और फरमाती है कि हुजूर बादशाह सलामत, आपका एक वजीर ने मेरा दही जबरन लेकर के खा लिया है और उसका पैसा भी नहीं दिया है, उसकी कीमत भी नहीं दिया है, उसका मुआवजा भी नहीं दिया है, और मैं एक गरीब आदमी हूँ, मैं एक लाचार आदमी हूँ, मैं कहाँ से फिर कीमत जुगाड़ करूंगा। हजरत सरकार मखदूम अशरफ फरमाते हैं, क्या तुम उसे पहचानती हो? कहा सरकार मैं उसे अच्छी तरह से जानती हूँ। तमाम वजीरों को सरकार मखदूम अशरफ बुलाते हैं और बुलाने के बाद फरमाते हैं कि देख सभी का चेहरा देख, क्या इनमें से कोई है? तमाम के चेहरे को देखने के बाद वो ज़ईफा कहती है सरकार इसमें से कोई भी नहीं है, इसमें से किसी का चेहरा नहीं है। तो कुछ उसे अभी गुफ्तगू हो रही थी कि एक वजीर घोड़े पे सवार होकर के आ रहा था। जैसे वो करीब आया है, वो ज़ईफा कहती है कि सरकार इनमें से कोई और नहीं था बल्कि जो सवारी पे सवार होकर के आ रहा है, इन्होंने मेरी दही जबरदस्ती लेकर खा लिया है, इन्होंने मेरा पैसा भी नहीं दिया है, इन्होंने कीमत भी नहीं चुकाई है। सरकार मखदूम अशरफ बुलाते हैं, फरमाते हैं क्या ये सच कह रही है? कहा सरकार ये बुढ़िया झूठ बोल रही है, ये ज़ईफा गलत बोल रही है। ज़ईफा की तरफ सरकार मखदूम अशरफ मुखातब होते हैं, फरमाते हैं कि तेरे पास कोई गवाह है? कहा मेरे पास कोई गवाह नहीं है सरकार, मेरे पास कोई शाहिद नहीं है सरकार, मैं कहां से गवाह बना करके किसको लाऊं? सरकार जिस वक्त इन्होंने मेरे साथ जबरदस्ती किया था, मेरे दही को लिया था, उस वक्त कोई मौजूद नहीं था, मैं था और ये था और तुम्हारा रब था, बस इसके अलावा चौथा कोई नहीं था। इतना सुनना था कि मखदूम अशरफ फरमाते हैं कि अभी मेरे पास एक और मरहला है, मैं अभी इंसाफ करता हूँ इसलिए कि मेरे रगों में मौला अली का खून दौड़ रहा है। अरे मेरे घर से तो इंसाफ किया जाता है, मेरे घरों से तो मौला अली की शुजाअत निकलती है और मैं उसी अली की औलाद हूँ। मैं तुझे इंसाफ दिला करके रहूंगा, हाँ मैं तुझे इंसाफ दिला के रहूंगा। हजरत सरकार मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी दूसरे वजीर को कहते हैं कि मक्खी पकड़ कर लाओ। मक्खी पकड़ के वजीर ने लाया और लाने के बाद कहते हैं कि इसके मुंह में डाल दो। जैसे उस वजीर के मुंह में डाला, उसे कै आई, उल्टी आई, तमाम दही बाहर निकल गया। हजरत सरकार मखदूम अशरफ ने उस वजीर से कहा अब बता तेरे साथ क्या सुलूक किया जाएगा, अब तेरे साथ क्या किया जाए? तो वो वजीर कहता है सरकार मुझसे गलती हो गई है, मेरे गुनाहों को माफ फरमा दो सरकार, मेरे खताओं को माफ फरमा दो सरकार। हजरत मखदूम अशरफ फरमाते हैं कि अब तुम्हारे गुनाहों को माफ नहीं किया जाएगा। उसे वजारत से माजूल कर दिया गया है, उसे वजारत से निकाल दिया गया है और उस पे उसका साथ इंसाफ किया गया है और ज़ईफा का जो मुआवजा होता था हज़रत सरकार मखदूम अशरफ ने उसे दिया है और उसका घोड़ा जीन समेत जितना सामान उसके घोड़े पे मौजूद था उनके घोड़ा को उस ज़ईफा को अता फरमा दिया है। कहा कि इसका इंसाफ यही है, उसके घोड़ा उस ज़ईफा को दे दिया गया है। ये मेरे मखदूम अशरफ के अदल का आलम है। 15 साल की उम्र है। हजरत सरकार मखदूम अशरफ जब सल्तनत पे बैठे, जब सल्तनत पे बैठने के बाद दूसरे मुल्क के बादशाह ने सोचा ये नौखेज लड़का है, नई उम्र है, ये अभी बादशाहत की सियासत को नहीं जानता है। ऐसा करते हैं कि सिमनान पे हमला करते हैं और हमला करने के बाद उसे पस्त दे देंगे, उस पे फतहियाबी हासिल कर लेंगे, फिर सल्तनत को अपने कब्जे में ले लेंगे, उस हुकूमत का भी मैं ही मालिक बन जाऊंगा। इसी दरमियान में दूसरे मुल्क के बादशाह ने हमला किया। हमला करने के बाद ये पता चल जाता है मखदूम अशरफ को। मखदूम अशरफ ने अपने वजीरों को लिया, अपने लश्करों को लिया और लश्कर लेने के बाद 15 साल की उम्र में सबसे आगे मखदूम अशरफ का घोड़ा था। लोगों ने कहा सरकार अभी नए सल्तनत पे बैठे हैं, अभी आप सल्तनत की सियासत को नहीं जानते हैं, बादशाह की सियासत को नहीं जानते हैं, अभी नए बैठे हैं, आप पीछे रहे, हम लोग आगे चलते हैं, हम लोग दाएं बाएं रहते हैं, आप हम लोगों के बीच में रहे। सरकार उस वक्त तक आप पे हम लोग तीर नहीं आने देंगे जब तक हमारे जिस्म में लहू का एक कतरा बाकी रहेगा। सरकार मखदूम अशरफ फरमाते हैं लोगों तुम ये देख रहे हो कि मेरी उम्र कम है,
लेकिन तुझे पता नहीं है कि मेरे रगों में मौला अली का खून दौड़ रहा है। तुझे पता नहीं है कि फातिमा ज़हरा का दूध मेरे खून के शक्ल में मेरे रगों में दौड़ रहा है। अरे तुझे पता नहीं है कि मेरे बाबा जान ने करबला के मैदान में तू पूरे कुंबा को लुटा दिया, लेकिन मजहब इस्लाम पे आँच नहीं आने दिया। कहा तुझे पता नहीं है, मैं अली की औलाद हूँ। अली की जब कदम आगे बढ़ जाता है तो पीछे नहीं आता है। जान दे सकता हूं लेकिन कदम पीछे नहीं कर सकता। हजरत सरकार मखदूम अशरफ फरमाते हैं कि घबराने की जरूरत नहीं है, मैं अली की औलाद हूं। और वो अली जिन्होंने बाबे खैबर को उंगलियों पे नचा दिया था, मैं उस अली की औलाद हूं। हजरत सरकार मखदूम अशरफ की सवारी घोड़ा आगे आगे, तमाम सालार पीछे पीछे, लश्करी पीछे पीछे। सरकार मखदूम अशरफ ने ऐसा हमला किया, ऐसी लड़ाई की कि दूसरे मुल्क के लश्करों को भागने पर मजबूर कर दिया और उसकी हुकूमत में अपनी सल्तनत का झंडा गाड़ दिया। ये 15 साल की उम्र में कारनामा किए हजरत सरकार मखदूम अशरफ। जब सरकार मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक दिन बैठे हुए, उस वक्त हजरत सरकार मखदूम अशरफ की उम्र 25 साल की है। सरकार मखदूम अशरफ 10 साल हुकूमत की है। 15 साल की उम्र में सल्तनत पे बैठे और 25 साल की उम्र में छोड़ दिए। हजरत सरकार मखदूम अशरफ की जब 25 साल की उम्र हुई, 10 साल के बाद हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम आते हैं और फरमाते हैं कि अशरफ, अगर तू अल्लाह ताला ने तुझे इसलिए पैदा नहीं फरमाया है कि तू दुनिया के सल्तनत पे गद्दी पे बैठ करके लोगों पे हुकूमत करे, बल्कि तुम्हें अल्लाह ने इसलिए पैदा फरमाया है कि सिर्फ इंसानों पे नहीं बल्कि दुनिया के तमाम मखलूक पे तुम्हारी हुकूमत हो। और तुझे अल्लाह ने मजहब इस्लाम की अशाअत के लिए, दीन मुस्तफ़ा की अशाअत के लिए पैदा फरमाया है। हजरत सरकार मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी घर जाते हैं, अपनी अम्मी जान से कहते हैं, अम्मी जान, मैं अब सल्तनत पे नहीं बैठना चाहता हूँ, अब मुझे बादशाहत की जरूरत नहीं है, मैं बादशाहत छोड़ना चाहता हूँ और इस बादशाहत पे अपने भाई आरफ को बैठाना चाहता हूँ, इसलिए कि मैं दीन मुस्तफ़ा की अशाअत के लिए निकलना चाहता हूँ, मैं तबलीग इस्लाम के निकलना चाहता हूँ, मैं मुस्तफ़ा की दीन की मुहाफ़िज़त के लिए निकलना चाहता हूँ। माँ कहती है, बेटा अल्लाह ने तुझे इसलिए तो पैदा फरमाया है, इसलिए कि तुम्हारी खुशखबरी तो पहले मिल गई थी कि तेरा जो बेटा पहला होगा, बड़ा होगा, उसका नाम अशरफ होगा और वो दीन का मुहाफिज बनकर सल्तनत को छोड़कर निकल जाएगा। कहा, बेटा मैं तुझे खुशी खुशी इजाजत देती हूँ, लेकिन हमारी एक शर्त है। कहा, वो कौन सी शर्त? कहा, बेटा जब तू यहाँ से निकलेगा, जब तू यहाँ से निकलेगा तो तमाम लाओ लश्कर के साथ निकलेगा सल्तनत से। कहा, अम्मी जान ऐसा क्यों? कहा, इसलिए बेटा कि ताकि लोग देखे तो ये पता चले कि बादशाह जा रहा है, वक्त का शहंशाह जा रहा है, वक्त का बादशाह जा रहा है। तमाम लश्करियों के साथ, शान शौकत के साथ, कर्रो फर के साथ निकले हजरत मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी। और जब अपने सल्तनत के अहाते पे जाते हैं, जाने के बाद हजरत सरकार मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी तमाम लश्करों को वापस भेज देते हैं, तमाम वजीरों को वापस भेज देते हैं, लेकिन उनमें से दो जो वजीर खास था, उन्होंने कहा, सरकार मैं आपका पीछा नहीं छोड़ सकता, मैं आपके साथ रहना चाहता हूँ, मैं आपके साथ सफर करना चाहता हूँ, मैं आपके साथ जाना चाहता हूँ। हजरत मखदूम अशरफ समनानी फरमाते हैं, ठीक है अगर तू जाना चाहता है तो चल। हजरत सरकार मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी जब सरकार की सल्तनत को छोड़ा, सिमनान के सल्तनत को छोड़ा, छोड़ने के बाद जब दूसरे मुल्क में दाखिल हुए तो दूसरे मुल्क के बादशाह को पता चला कि समनान का बादशाह अशरफ आ रहा है। उन्होंने दावत की और बुलाया, उसके लिबास से और चेहरे से पता चल रहा था कि किसी बादशाह का चेहरा है, किसी आले रसूल का चेहरा है। उन्होंने मखदूम अशरफ को दावत दिया और दावत देने के बाद हजरत सरकार मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी के साथ जो दो वजीर थे, दो वजीरों ने खाना खाया। हजरत सरकार मखदूम अशरफ ने भी खाना खाया। खाना खाने के बाद दोनों वजीर जब
जब सो गए, सो जाने के बाद जब वो दोनों वजीर सो गए तो सरकार मखदूम अशरफ रात के सन्नाटे में वहां से निकल पड़ते हैं कि ये दोनों मेरे लिए रुकावट बन रहा है, मेरे लिए रुकावट बन रहा है। ऐसा करते हैं, इसे छोड़ करके यहाँ से निकल जाते हैं। हजरत सरकार मखदूम अशरफ उन्हें छोड़ करके अब हिंदुस्तान की तरफ रवाना होते हैं, हिंदुस्तान की तरफ रवाना होते हैं। हजरत सरकार मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वहां से चलते हैं, दोनों वजीर वहीं रह जाता है। अब हजरत सरकार मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी तने तनहा चल रहे हैं। चलते 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 जब हिंदुस्तान की सरहद पर, मैं बड़ी तेजी के साथ मैं बता रहा हूँ, हजरत सरकार मखदूम अशरफ हिंदुस्तान की धरती पर जब दिल्ली तशरीफ पहुंचे, उस वक्त फिरोज शाह की हुकूमत थी। उस वक्त दिल्ली की हुकूमत फिरोज शाह के हाथ में था। उस वक्त के सल्तनत का मालिक फिरोज शाह था। उस वक्त उनका हाथियों में से एक हाथी जो पागल हो गया था, दीवाना हो गया था, आवारा हो गया था, जो उसके सामने जाता अपने सूंड से पकड़कर उसे फुटबॉल की तरह फेंक देता था। किसी की दुकानें सामने आती, दुकान तोड़ दिया जाता था। कोई उसके सामने आता, उसे मार देता था। अब वो हाथी पागल हो गया था। लोग अब उससे अपनी जान बचाने की फिक्र करने लगे हैं। लेकिन उसी दरमियान में हजरत सरकार मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उधर से ही और उसी रास्ते से तशरीफ ले जा रहे हैं। लोगों ने देखा कि एक नौजवान आ रहा है। नौजवान बड़ा खूबसूरत है, उसका चेहरा बड़ा हसीन है, उसका चेहरा बड़ा मुखड़ा बड़ा प्यारा है। लोगों ने देखा ये कड़कती हुई जवानी वाला नौजवान आ रहा है। नौजवान बड़ा खूबसूरत है, ये हाथी से मारा जाएगा, ये हाथी से मारा चला जाएगा, ये हाथी से कुचला चला जाएगा। इसकी जान की हिफाजत कौन करेगा? सब अपनी जान बचाने की फिक्र में है, उसे अपनी जान की फिक्र नहीं है। लेकिन ये मस्त हो करके दुनिया को अपने ज़हन से निकाल करके सिर्फ याद इलाही में महव थे, मुस्तफा पे दुरूद व सलाम पढ़ रहे थे, अल्लाहू अकबर की सदाएं बुलंद कर रहे थे। अब उसे दुनिया की फिक्र नहीं थी। अगर फिक्र थी तो आखिरत की फिक्र थी, उसे फिक्र थी तो अल्लाह और उसके रसूल के जिक्र का फिक्र था। हजरत मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। हाथी उधर से आता चला जा रहा है, हाथी चला आ रहा है। मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी आगे बढ़े हैं। अब उस तमाम लोगों ने देखा कि अब हाथी करीब आ गया है, नौजवान को पकड़कर पटक देगा, नौजवान को मार देगा, नौजवान को कुचल देगा। लेकिन हाथी जैसे मखदूम अशरफ के सामने आया, अपने घुटनों को टेक दिया, अपने सूंड को मखदूम अशरफ के कदमों पे रख दिया। लोगों ने हालत तसव्वुरात में सवाल किया, ए हाथी, अब तक तू लोगों को मार रहा था, लोगों के घरों को तोड़ रहा था, लोगों के दुकानों को तोड़ रहा था, लेकिन जब ये नौजवान आया तूने उसे कुछ नहीं किया है, तूने उसे कोई ऐसा नहीं पहुंचाया है। तो हाथी ने अपने जबान से कहा, लोगों सुन लो, मैं इतना भी पागल नहीं हुआ हूँ कि अली के लाल को ना पहुंचाऊं। मैं अभी इतना भी पागल नहीं हुआ हूँ कि फातिमा के लाल को ना पहुंचाऊं। मैं अभी इतना भी पागल नहीं हुआ हूँ कि अली के शहजादे को ना पहुंचाऊं। अरे मुझ में इतनी तमीज बाकी है कि कौन औलादे रसूल है, कौन गुस्ताखे आले रसूल है। अभी मेरे अंदर इतना तमीज है। हजरत सरकार मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी ने उसे हाथ सहलाने के बाद हाथी अपना रास्ता लिया। मखदूम अशरफ निकल पड़े, आगे निकलते जा रहे हैं। जब ये करामत को देखा है तो उस वक्त फिरोज शाह ने हजरत मखदूम अशरफ को दावत दी। हजरत मखदूम अशरफ आ जाते हैं, तशरीफ ले जाते हैं, खाने पीने का इंतजाम फरमाते हैं। हजरत सरकार मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी सिर्फ अल्लाहू अल्लाहू की सदाएं बुलंद कर रहे हैं, सिर्फ विर्द अल्लाहू अल्लाहू की कह रहे हैं और लबों पर मुस्तफा पे दुरूद सलाम पढ़ रहे हैं, नबी की बारगाह में दुरूद सलाम पढ़ रहे हैं। सुबह होती है, हजरत सरकार मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी, उसे तो बशारत पहले दी गई थी कि तुम्हारा पीरो मुर्शिद बंगाल की खाड़ी में तुम्हारा इंतजार कर रहा है। तुम्हारे पीरो मुर्शिद हजरत मखदूम अलाउल हक पांडवी तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। हजरत सरकार मखदूम अशरफ अपने पीरो मुर्शिद की याद में खोए हुए हैं। दिल्ली से अब सफर करते हैं, बिहार पहुंचते हैं।
حضرت سرکار مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب دلی سے بہار کی طرف روانہ ہوئے. جیسے بہار کی سرحد پہ پہنچتے ہیں, جیسے سرکار مخدوم اشرف آنے والے ہیں, ادھر حضرت سرکار مخدوم بہاری کو پتہ چل جاتا ہے. مخدوم بہاری کو پتہ چل جاتا ہے وقت نزا قریب ہے. حضرت سرکار مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کے مریدوں نے کہا, خلفاؤں نے کہا, سرکار اب آپ کا وقت قریب آ گیا ہے. سرکار اگر نصیحت کرنا چاہے, وصیت کرنا چاہے تو سرکار کچھ وصیت فرما دے. حضرت سرکار مخدوم بہاری نے کہا جب میرا وصال ہو جائے تو تم میری نماز جنازہ تم میں سے کوئی نہیں پڑھائے گا. کہا سرکار پھر پڑھائے گا کون؟ کوئی مرید خاص ہے کیا؟ کوئی خلیفہ خاص ہے کیا؟ کہا نہیں, جو پڑھائے گا وہ صحیح النسب سید ہوگا, ساتوں قرات کا مالک ہوگا, عالم دین ہوگا, فاضل دین ہوگا, وقت کے مفتی ہوگا, وقت کے محدث ہوگا, وقت کے مفکر ہوگا, اور وہ آل رسول ہوگا. وہ آل رسول ہوگا اور صحیح النسب سید ہوگا, حسنی حسینی سید ہوگا. کہا تم لوگ میں سے کوئی نہیں پڑھائے گا. اب پیر و مرشد کا حکم کون رد کرے؟ سرکار مخدوم بہاری کا وصال ہو جاتا ہے. حضرت سرکار مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی جب بہار کی دھرتی پہ پہنچتے ہیں, پتہ چلا کہ مخدوم بہاری کا وصال ہو چکا ہے, اللہ کے ولی کا وصال ہو چکا ہے. حضرت سرکار مخدوم اشرف سمنانی پہنچتے ہیں تو جب پہنچتے ہیں کہا اس کی نماز جنازہ میں پڑھاؤں گا. ولی رامی شناست, ولی کو ہی پہچانتا ہے, اسے پتہ چل گیا تھا. سرکار مخدوم اشرف فرماتے ہیں کہ اس کی نماز جنازہ میں پڑھاؤں گا. کہا آپ پڑھاؤ گے, کیا آپ صحیح النسب سید ہو؟ کہا الحمدللہ میں صحیح النسب سید ہوں. کہا آپ ساتوں قرات کے حافظ قرآن ہیں؟ کہا الحمدللہ میں ساتوں قرات کا حافظ قرآن ہوں. کہا آپ عالم ہو؟ کہا الحمدللہ میں 14 علوم کا مالک ہوں, میں 14 علوم کا مالک ہوں. کہا آپ بادشاہ بھی تھے؟ کہا تھے نہیں, اب بھی ہوں. پہلے انسانوں پہ صرف حکومت تھی, اب انسانوں پہ ہی نہیں بلکہ تمام مخلوق پہ ہماری حکومت ہے. کہا اب بھی ہوں. کہا اچھا. کہا میں نماز جنازہ پڑھاؤں گا. حضرت سرکار مخدوم بہاری کا نماز جنازہ حضرت سرکار مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی پڑھاتے ہیں. جب پڑھانے کے بعد اسے دفن کیا گیا, دفن کرنے کے بعد جب تمام لوگ چلے گئے, چلے جانے کے بعد حضرت سرکار مخدوم بہاری کا ہاتھ باہر نکل جاتا ہے. اب لوگ پریشان ہو گئے, مریدین پریشان ہو گئے کہ آخر یہ معاملہ کیا ہے کہ سرکار کا ہاتھ باہر نکل گیا ہے. حضرت سرکار مخدوم اشرف سمنانی مراقبہ فرماتے ہیں اور فرمانے کے بعد کب کہتے ہیں کہ حضرت سرکار مخدوم بہاری نے تجھے وصیت کی تھی, اس کا ایک قلعہ شریف تھا, اس کا ایک تبرک تھا. انہوں نے کہا تھا کہ جب میرا وصال ہو جائے تو میری قبر میں رکھ دینا. کہا ہاں حضور کہا تھا. کہا فوراً لے کر آؤ. ایک مرید خاص نے کہا میرے پاس ہے. دوڑ کر لایا گیا, وہ تبرک مخدوم اشرف کے ہاتھ میں دیا اور مخدوم اشرف نے حضرت مخدوم بہاری کے ہاتھ میں دیا. جیسے مخدوم بہاری کے ہاتھ میں دیا, مخدوم بہاری کا ہاتھ اندر چلا گیا. اب حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی پوری رات سرکار مخدوم بہاری کی خانقاہ میں تشریف فرما ہے, وہیں پہ آرام فرما ہے. رات میں حضرت سرکار مخدوم بہاری خواب میں آتے ہیں اور خواب میں آنے کے بعد تبرکات پیش کرتے ہیں, اپنا خرقہ شریف پیش کرتے ہیں. جب صبح کو سرکار مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی بیدار ہوتے ہیں, فرماتے ہیں کہ سرکار کا جبہ شریف کہاں ہے, سرکار کا خرقہ شریف کہاں ہے. کہا اسے آپ کو کیا لینا دینا ہے. کہا سرکار مخدوم بہاری نے خواب میں مجھے عطا فرمایا ہے, میں لوں گا, اس کا وارث میں ہوں. کہا میں نہیں دے سکتا. تو سرکار مخدوم اشرف سمنانی فرماتے ہیں ایسا کرو کہ سرکار کا جبہ خرقہ شریف سرکار کے قبر انور پہ رکھا جائے اور جو اس کو اٹھا لے گا اسی کا ہو جائے گا. کہا ٹھیک ہے. جبہ لایا جاتا ہے, خرقہ شریف لایا جاتا ہے, حضرت سرکار مخدوم بہاری کے مزار اقدس پہ رکھا جاتا ہے. ان کے جو مرید خاص تھے سرکار مخدوم بہاری کے, جو خاص تھے وہ لینا چاہ رہا تھا. جب وہ اٹھانے گیا, اب وہ خرقہ اٹھنے کا نام نہیں لے رہا ہے, جب وہ ہٹ گیا
तो जैसे मखदूम अशरफ ने खिरका में हाथ लगाया, ऐसे खिरका उठ गया जैसे कोई फूल को उठा रहा हो, फूल को उठा रहा हो। सरकार मखदूम अशरफ ने लिया तबर्रुक को। अब वहां से खानकाह से रवाना हुए, खानकाह से चले जा रहे हैं, खानकाह से रवाना हुए। खानकाह से रवाना होने के बाद अब बिहार के सरहद को छोड़ने वाले हैं, अब बंगाल के सरहद पे कदम रखने वाले हैं। उधर हजरत अलाउल हक पांडवी को अपने मुरीद की खुशबू आ रही है। कहा कि मेरे यार की खुशबू आ रही है, मेरे यार की खुशबू आ रही है, मेरा यार आ रहा है, मेरा दोस्त आ रहा है, मेरा महबूब आ रहा है। तमाम मुरीदों को बुलाया। बुलाने के बाद कहा कि जो मेरे पीरो मुर्शिद का डोली है उसको सजाओ, उसमें मैं बैठूंगा, और जो मेरी डोली है उसको सजाओ, मेरा मुरीद बैठेगा। बंगाल के 1 कोस की दूरी पर हजरत सरकार अलाउल हक पांडवी डोली को लेकर गए और जाने के बाद इंतजार कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं। उधर से हजरत सरकार मखदूम अशरफ समनानी तशरीफ ला रहे हैं, उधर से हजरत मखदूम पाक तशरीफ ला रहे हैं। जब मखदूम पाक तशरीफ लाए, करीब आए, करीब आने के बाद कदमे कदमे अलाउल हक पांडवी पे बोसा दिया। अब हजरत अलाउल हक पांडवी ने हजरत सरकार मखदूम पाक को उठाया और उठाने के बाद सीने से लगा लिया और लगाने के बाद कहा, मुझे पहले ही जब तू बिहार में थे तो मेरे यार की खुशबू आ रही थी। अब सरकार मखदूम अलाउल हक पांडवी मखदूम पाक को कहते हैं कि डोली में बैठ जाओ। उस डोली में जो मेरी डोली, जो मेरा डोली है, मैं अपने पीरो मुर्शिद के डोली में बैठूंगा। हजरत सरकार मखदूम अशरफ फरमाते हैं, सरकार आप डोली में बैठ जाए, मैं यहाँ से पैदल चलता हूँ। तो हजरत सरकार मखदूम अलाउल हक पांडवी के उस वक्त मुरीदीन सोच रहे थे, जिनके लिए पीरो मुर्शिद लाने जा रहे हैं उसकी शान कितना आला होगा, उनका मकाम कितना आला होगा। अगर मुरीद जाए तो बड़ी बात नहीं है, अगर पीर लेने जाए तो ये बहुत बड़ी बात है। इससे मुरीद का मकाम पता चलता है। हजरत सरकार अलाउल हक पांडवी फरमाते हैं कि नहीं, तू भी डोली में बैठेगा। हजरत सरकार मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी डोली में बैठते हैं। अब डोली चल रहा है, खानकाह शरीफ पंडुआ शरीफ में पहुंचता है। पहुंचने के बाद सरकार मखदूम हजरत अलाउल हक पांडवी उतरते हैं, हजरत मखदूम पाक भी उतरते हैं। उतरने के बाद गुस्ल फरमाते हैं। गुस्ल फरमाने के बाद उसी वक्त बैत होते हैं और बैत होने के बाद ही फौरन सरकार हजरत मखदूम अलाउल हक पांडवी ने सरकार मखदूम पाक को खिलाफत भी अता फरमा दी है, इजाजत भी अता फरमा दी है और तमाम सलासिल की खिलाफत अता फरमा दी है। वाहिद सिलसिला है, वाहिद सिलसिला है। किसी सिलसिले में सिर्फ कादरी का खिलाफत है तो चिश्ती का नहीं, चिश्ती का है तो नक्शबंदी का नहीं, अगर नक्शबंदी का है तो सहरवर्दी का नहीं। लेकिन एक ऐसा सिलसिला है मखदूम पाक का सिलसिला अशरफिया चिश्तिया, जिसमें तमाम सिलसिला के मजमुआ का नाम है अशरफी। ये ऐसा वाहिद सिलसिला है, तमाम सलासिल का खिलाफत मखदूम पाक को मिली हुई है। हजरत सरकार मखदूम पाक किसी को फौरन मुरीद होने के बाद इजाजत व खिलाफत नहीं मिलती है, लेकिन सरकार मखदूम पाक जैसे मुरीद हुए तो सरकार अलाउल हक पांडवी ने इजाजत व खिलाफत अता फरमा दी है। जब इजाजत व खिलाफत अता फरमा दिए, मुअर्रिख तारीख में लिखते हैं कि हजरत सरकार मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी अपने पीरो मुर्शिद की बारगाह में, एक रिवायत में है कि 12 साल रहे और दूसरी रिवायत में है कि 18 साल रहे। अपने पीरो मुर्शिद की खिदमत में रहे और पीरो मुर्शिद की खिदमत करते रहे। जब 12 साल गुजरने के बाद हजरत सरकार मखदूम पाक को आने की इजाजत मिलने लगी, जब वहां से इजाजत तलब करने लगे तो हजरत सरकार मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी के पीरो मुर्शिद हजरत अलाउल हक पांडवी ने रात के सन्नाटे में रब की इबादत कर रहे हैं और रब की बारगाह में दुआएं फरमा रहे हैं। मौला मौला मौला, मेरा मुरीद खास जा रहा है, मौला कोई ऐसा
मेरा लक़ब अता फरमा दे कि मैं अशरफ को अता कर दूं। रब की बारगाह में हज़रत अलाउल हक पांडवी दुआ कर रहे हैं। दुआ करते करते वो जिस खानकाह में मखदूम अशरफ के पीरो मुर्शिद हज़रत अलाउल हक पांडवी दुआ कर रहे थे, दरो दीवार से जहांगीर 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 की आवाजें गूंजने लगी। तो हज़रत सरकार अलाउल हक पांडवी खुश हुए और कहा, अशरफ कुछ सुनाई दे रहा है? कहा, सरकार जहांगीर जहांगीर की सदाएं सुनाई दे रहा है। सरकार अशरफ, आज से तुम्हारा लक़ब अशरफ जहांगीर होगा, ये रब की तरफ से है। अब यहाँ से हज़रत सरकार मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी अब अपने पीरो मुर्शिद से इजाज़त लेने के बाद अपने खानका से चलते हैं। खानका से चलने के बाद हज़रत सरकार मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी चले आ रहे हैं। उनके पीरो मुर्शिद ने हाथ पे ही नक्शा बता दिया था कि अशरफ तुझे यहाँ जाना है, इसलिए कि तुझे अल्लाह ने वहाँ की मिट्टी की खमीर से तुझे पैदा फरमाया है और तुझे वही दफन किया जाएगा। हज़रात, आपको मालूम है कि जो जहाँ की मिट्टी से बनाया जाता है वहीं उसको दफन भी किया जाता है। आप मिट्टी डालते हैं तो क्या पढ़ते हैं? मिनहा खलकनाकुम वफीहा नुईदुकुम व मिनहा नुखरजुकुम तारतन उखरा। इसी मिट्टी से पैदा किए गए, इसी के तरफ लौटाए जाएंगे, फिर इसी से उठाए जाएंगे कि हम यही की मिट्टी से जहां से उसे पैदा किया गया है, उसका वजूद हुआ है, बनाया गया है, वहीं पे उसको दफन किया जाता है। तो अशरफ के पीरो मुर्शिद ने कहा कि अशरफ तुझे वहीं की खमीर की मिट्टी से तुझे तुम्हारा वजूद बनाया गया है, वहीं पे तुझे दफन होना है, वहीं तुम्हारा मजार बनेगा। और नक्शा बता दिया कि तुझे फला जगह जाना है। देखिए दरिया का किनारा है, जो वो दरिया का किनारा है, जो मैदान नजर आ रहा है वो तुम्हारा मस्कन होगा, वो तुम्हारा ठिकाना होगा, वो तुम्हारा साकना होगा, वहां तुझे ठहरना है, वही तुम्हारा मस्कन होगा। हज़रत सरकार मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी अपने पीरो मुर्शिद ने जो नक्शा बताया था, अब अलाउल हक पांडवी की बारगाह से पंडुआ शरीफ बंगाल से चलते हैं। चलते हज़रत सरकार मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब अपने पीरो मुर्शिद की बारगाह से चले, जब यूपी की धरती पे पहुंचते हैं, पहुंचने के बाद सरकार मखदूम अशरफ जहांगीर जब ठहरते हैं, वहां ठहरने के बाद कुछ लोग आते हैं इस गरज से, उलमा भी आते हैं, अवाम भी आती है। अवाम इस गरज से आती है कि मैं अल्लाह के वली की बारगाह में जा रहा हूँ, अगर ये दुआ कर देंगे तो मेरी परेशानियाँ दूर हो जाएंगी, मेरे मुश्किलें आसान हो जाएंगे, मेरे साथ जो परेशानियाँ हैं वो परेशानियाँ दूर हो जाएंगी। हज़रत सरकार मखदूम अशरफ की बारगाह में लोग इसी गरज से आ रहे थे कि अल्लाह के वली आए हैं, अगर मेरे हक में दुआ फरमा देंगे तो मेरी परेशानी दूर हो जाएगी। जिसका कोई औलाद नहीं है, अगर औलाद के हक में दुआ कर देंगे तो अल्लाह ताला इसके दुआ की बरकत से औलाद अता फरमाएगा। अगर कोई बीमार है तो अल्लाह के वली दुआ कर देंगे तो बीमारी दूर हो जाएगी, शफायाबी मिल जाएगी। तमाम परेशानियों को लेकर के आया तो उसमें उलमा भी पहुंचे, कुछ इस गरज से पहुंचे कि चलते हैं अल्लाह के वली की बारगाह में पहुंचते हैं, और पहुंचने के बाद देखते हैं कि अल्लाह के वली की बारगाह से फैज़ कितना मिलता है। लेकिन उन्हीं में से कुछ फितना साज भी होता है, वो इस गरज से पहुंचता है कि देखेंगे जो फकीर आया है उसके पास इल्म कितना है, उसके पास तकवा कितना है, उसके पास परहेजगारी कितना है। ये फितना सब दौर में रहा है। हज़रत सरकार मखदूम अशरफ की बारगाह में भी आए और जौनपुर की धरती पर पहुंचे हुए हैं। जौनपुर की धरती पे हज़रत मखदूम पाक है, उलमा पहुंचते हैं। जिसको फैज़ान लेना था वो अदब के साथ गया, और जो अदब के साथ गया था फैज़ान पा गया है, और जो सवालिया गरज से गया था लोगों ने कहा कि देखते हैं कि जो फकीर आया है वो कितना बड़ा वली है, कितना बड़ा वली है। तो लोगों ने मशवरा किया, उनमें से कुछ लोगों ने मशवरा किया, जो अय्यार मक्कार था उन लोगों ने मशवरा किया कि इस फकीर का मजाक बनाया जाए, देखते हैं कि इसके अंदर कितना पावर है। उन कहा लगाने वाले नौजवानों में से कुछ नौजवानों में से एक नौजवान ने ये सोचा, नौजवानों ने मशवरा किया, कोई मरने का नाटक करो, कोई मरने का ड्रामा करो, इस फकीर से कहेंगे कि नमाज जनाजा पढ़ा दो, और जैसे ये पहली तकबीर कहेगा तुम उठ करके खड़े हो जाना, इसका मजाक बना देंगे, कहा लगा देंगे।
हजरत सरकार मखदूम अशरफ की बारगाह में वो लोगों ने नौजवानों ने लेकर फरियाद आया, कहा सरकार नमाज जनाजा सामने है, उसकी नमाज जनाजा पढ़ा दीजिए। सरकार मखदूम अशरफ खामोश है। कहा सरकार मैं आपसे कह रहा हूँ जनाजा पढ़ा दीजिए। कहा सरकार मैं आपसे कह रहा हूँ जनाजा पढ़वा दीजिए। सरकार चौथी मर्तबा सरकार से फरमाते हैं, कहा जनाजा पढ़ा दूँ? कहा हाँ सरकार पढ़ा दीजिए। लेकिन उसे पता नहीं था कि फिरासत की नज़र से अल्लाह के वली देख लिया करते हैं, अल्लाह के नूर से देख लिया करते हैं। हजरत मखदूम पाक फरमाते हैं कि नमाज जनाजा पढ़ा दूँ? कहा पढ़ा दीजिए हुजूर। कहा फिर आगे तुम जानेगा। कहा सरकार आगे हम लोग देख लेंगे। कहा ठीक है। सरकार मखदूम पाक जाते हैं, अल्लाहु अकबर तकबीर जैसे कहते हैं। अब नौजवान सोच रहे हैं कि अब वो नौजवान उठेगा हम लोग हंसेंगे, अब नौजवान उठेगा हम लोग मजाक बनाएंगे। फिर दूसरी तकबीर मखदूम पाक ने पुकार दिया है, दूसरी तकबीर पुकार दिए हैं। फिर ये सोच रहा है कि अब उठेगा। तीसरी तकबीर पुकार दिए हैं, कहा अब उठेगा। चौथी तकबीर पुकार दिए हैं, कहा अब उठेगा। सलाम फेर दिए। अब वो नौजवान उठने का नाम नहीं ले रहा है, नौजवान उठने का नाम नहीं ले रहा है। लोगों ने जाकर देखा, नौजवानों ने देखा, उसके चेहरा को हटा करके कपड़े हटा करके देखा, जो अब तक जिंदा था अब वो मुर्दा हो गया है, इसलिए कि उसकी नमाज जनाजा किसी और ने नहीं पढ़ाया था, अली के लाल ने पढ़ाया। अब नौजवान सोचने लगा कि अब क्या किया जाए। अब तमाम नौजवान मखदूम अशरफ के कदमों से लिपट गया। कहा सरकार गलती हो गई, माफ फरमा दे। पहले मैंने कहा था कि जनाजा पढ़ा दे, तुमने कहा पढ़ा दो, मैंने पढ़ा दिया। कहा सरकार कुछ करे। कहा अब कुछ नहीं होगा, जो होना था हो गया। अब सरकार मखदूम पाक जौनपुर की धरती पे है। अब कुछ उलमाए कराम इम्तिहान के गरज से आया है, तो उलमा ने सोचा कि सरकार मखदूम पाक से इम्तिहान लिया जाए, उनसे पूछा जाए। किसी ने मंतिक में सवाल बनाया है, कोई और फ़िक़्ह में सवाल बनाया है, किसी ने जोग्राफिया में सवाल बनाया है। जिसके पास जो इल्म था, एक पर्चा चट्टा लंबा तैयार किया है कि मखदूम पाक से सवाल करेंगे, उनसे पूछेंगे, देखते हैं कि वो सवाल दे पाते हैं या नहीं देते हैं। किसी ने तो यहाँ तक कह दिया है, अरे उस फकीर से हम ऐसा सवाल करेंगे कि वो मेरे सवाल का जवाब ना दे सकेगा। अब वो तमाम चट्टा पट्टा लेकर के, पर्ची लेकर के मखदूम पाक की बारगाह में पहुँचे। अब मखदूम पाक को एक नज़र निगाहे विलायत उठाया, पहचान गए कि ये वफादार नहीं है, गद्दार नजर आ रहा है। मखदूम पाक की नज़र से एक तेली तेल बेचने जा रहा था। मखदूम पाक ने उसे बुलाने के बाद कहा कि तू कहाँ जा रहा है? कहा हुजूर मैं तेल बेचने जा रहा हूँ, मैं तेली हूँ, तेली। कहा मेरा कारोबार यही है। कहा तू आलिम है? कहा नहीं हुजूर मैं आलिम नहीं हूँ। कहा तू फाजिल है? कहा मैं कुछ नहीं हूँ, मैं तेली हूँ, तेली। कहा मैं जाहिल हूँ, अगर मैं आलिम होता तो तेल काहे बेचता, अगर मैं फाजिल होता तो तेल काहे को बेचता। तो सरकार मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी ने उसे करीब बुलाया, और बुलाने के बाद सरकार मखदूम अशरफ पान खा रहे थे, पान चबा रहे थे। अपने मुंह से पान को निकाला, उस तेली के मुंह में डाल दिया, और डालने के बाद सरकार मखदूम अशरफ फरमाते हैं कि उलमा अब तुझे जो सवाल करना है मुझसे मत पूछ, इस तेली से पूछ। तमाम उलमाए कराम परेशान कि ये तेली क्या जवाब देगा, ये तेली क्या जवाब देगा। अब जैसे तेली के मुंह में पान का पराग गया, अब उसके दिल की दुनिया बदल गई है, उसके दिल में अजीब इनकलाब पैदा हो गया है। अब तेली भी बोलने लगा कि मुझसे जो सवाल करना है मुझसे कर। उसे पर्चा दिया गया, एक एक सवाल का हल उस तेली ने कर दिया है। और तेली के सवाल का जवाब देने के बाद उलमाओं ने कदमे मखदूम अशरफ में गिर गया, और यही पुकार कर कहने लगा कि जब सिमनान के अशरफ का जब ये आलम है, जब सिमनान के अशरफ का जब ये आलम है, तो मदीने वाले मुस्तफा का आलम क्या होगा। फिर मदीने वाले मुस्तफा का आलम क्या होगा। अशरफ, अल्लाहु अकबर कबीरा, मखदूम अशरफ के पान का ये आलम है कि अगर किसी के मुंह में चबाया हुआ पान डाल दे तो वो पल भर में मुफ्ती आजम नहीं बल्कि मुहद्दिस आजम बन जाता है, और हर सवाल का जवाब देता है। अशरफ का ये आलम है तो मुस्तफ़ा, मदीने वाले मुस्तफ़ा के लुआबे दहन का आलम क्या होगा।
मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी। अब जौनपुर में बात यहीं तक खत्म नहीं हुई है, और एक और उलमा की जमात आई है। ये सवाल करने के गरज से सरकार आपने जो किताब लिखी है, तमाम सहाबाए कराम के शान में आपने मुख्तसर सफ़ात लिखे हैं, लेकिन आप मौला अली के शान में आपने बहुत सारे सफ़ात लिख दिए हैं। ये सवाल सोच करके यही रखे हुआ था कि कल बाद नमाज जुमा सरकार मखदूम अशरफ की बारगाह में जाएंगे और उनसे सवाल करेंगे, उनसे पूछेंगे, सरकार आप इसका जवाब दीजिए, आपकी किताब में सिर्फ मौला अली का जिक्र है। वो ये सोच रहा था कि मखदूम अशरफ पे शिया का फतवा लगा देंगे, इसलिए कि मौला अली का जिक्र ज्यादा किया है और सहाबाए कराम का मुख्तसर किया है। तमाम उलमाए कराम ने यही सोचने के बाद जैसे जुमा का दिन आया है, इतनी बारिश हुई कि जौनपुर का पूरा शहर भर गया, मस्जिद में पानी जमा, जुमा की नमाज नहीं हुई। कहा अच्छा एक ही जुमा ने गया है, दूसरा जुमा फिर आने वाला है। उलमाओं ने फिर सोचा कि दूसरा जुमा आएगा, आने के बाद उससे सवाल करेंगे। जब दूसरा जुमा आया, फिर इतनी बारिश हुई कि फिर जौनपुर शहर भर गया, फिर जुमा की नमाज नहीं हुई। तीसरी जुमा में तो उसमें कुछ ज़ी-शऊर हजरात भी रहते हैं, कुछ अक्लमंद भी रहते हैं, कुछ पढ़े लिखे लोग भी रहते हैं। कुछ लोगों ने कहा ए उलमाओं की जमात सुन लो, तू अशरफ से सवाल करना चाहता है, अरे उस फकीर से सवाल करना चाहता है, तुझे पता नहीं है कि वो 2 जुमा से तू सवाल सिर्फ सोच रहा है, तो शहर में इतनी बारिश हो रही है कि तू जुमा नहीं पढ़ पा रहा है, और जब तक तू सोचता रहेगा तब तक तू जुमा की नमाज नहीं पढ़ पाएगा, तू नहीं नमाज पढ़ पाएगा। कहा अब मैं सवाल के गरज से नहीं जाऊंगा, अब जानवे अदब होकर के सरकार मखदूम अशरफ की बारगाह में जाऊंगा, अब अल्लाह के वली समझ कर जाऊंगा। जैसे अल्लाह के वली का इरादा दिल में किया, सरकार मखदूम अशरफ की बारगाह में पहुंचा। कहा सवालिया गरज से नहीं आया हूं सरकार, सवालिया गरज से नहीं आया हूं, जानकारी लेने के लिए आया हूं। सरकार आप बता दें कि आपकी किताब में तमाम सहाबाए कराम के बारे में आपने मुख्तसर लिखा है, और मौला अली के शान में आपने कम लिखा है। आखिर मामला क्या है, आखिर राज क्या है? हज़रत सरकार मखदूम अशरफ फरमाते हैं कि तुम लोग कहना क्या चाहते हो? कहा सरकार हम लोग जानना चाहते हैं, कहना नहीं चाहते हैं। अब तो उन लोगों को पता चल गया है, अगर फिर जानना चाहेंगे तो फिर जना देंगे। अदब के साथ सरकार बता दें। सरकार मखदूम अशरफ फरमाते हैं एक बात बताओ, तुम दूसरे के बाप की तारीफ कितनी करोगे? जहां तक हो सकेगा वहां तक। लेकिन मौला अली मेरा बाप, मैं उनकी औलाद, घर की हकीकत मैं जानता हूं, और जब किसी का बेटा अपने बाप की तारीफ करता है तो दूसरे के बाप से ज्यादा अपने बाप की तारीफ करता है। मैं अपने बाप की तारीफ किया हूं मौला अली समझकर कि मौला अली मेरे बाप। तमाम उलमा कदमों पे गिर गया, कहा सरकार मेरी गुस्ताखी को माफ कर दीजिए। हज़रत सरकार मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी अब जौनपुर से चलते हैं, अब बसखारी पहुंचते हैं फैजाबाद। जैसे बसखारी पहुंचने के बाद वहां पानी पिए, खारा पानी, आज भी उसका नाम बसखारी। आगे बढ़े किछौछा, कहा कुछ उससे कुछ अच्छा, तो हो गया किछौछा। अब किछौछा सरकार मखदूम अशरफ ने नक्शा देखा कि पीरो मुर्शिद ने यही बताया, वहां पे पंडित लोग कब्जा किए हुआ था। पंडितों से कहा, अपने मुरीदों से कहा कि पंडितों से कह दो कि ये मेरी जगह है, वो खाली कर दे। पंडितों ने कहा कि अगर उस फकीर में पावर है तो खाली करवा ले, मैं खाली करूंगा नहीं, इसलिए कि मैं बहुत दिन से कब्जा करके हूं। कहा अगर उनमें पावर है तो करवा ले, मैं खुद से करूंगा नहीं। कहा अच्छा करेगा नहीं? कहा नहीं करेगा। हज़रत सरकार मखदूम अशरफ अपने एक मुरीद खास को भेजते हैं, मुरीद, और वो मुरीद को जो अभी और आज ही मुरीद हुआ था, और उस मुरीद का नाम है हज़रत जमालुद्दीन।
हजरत जमालुद्दीन उसे भेजा, कहा नहीं खाली करूंगा। अब वो मुकाबले के लिए तैयार हो गया पंडित जी। जब मुकाबले के लिए तैयार हुआ तो उन्होंने चींटियों का लश्कर भेज दिया। जब जैसे चींटियों का लश्कर भेजा तो सरकार मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी ज़्यादा पान खाया करते थे। फिर पान की सिट्ठी निकाला, उसी जमालुद्दीन के मुंह में डाल दिया और कहा जमालुद्दीन अब मैं नहीं जाऊंगा, तेरा पीर नहीं जाएगा, अब जमालुद्दीन मुकाबला करेगा। कहा जमालुद्दीन मुकाबला करेगा। जैसे हजरत जमालुद्दीन आगे बढ़ते हैं, सरकार का आसा मुबारक हाथ में है। हजरत सरकार जमालुद्दीन को जब आगे बढ़ने बोला, हजरत जमालुद्दीन घबरा गए। हजरत जमालुद्दीन से और हजरत सरकार मखदूम अशरफ फरमाते हैं जमालुद्दीन घबराने की ज़रूरत नहीं है, तू जा नहीं रहा है, अशरफ तुझे भेज रहा है। हजरत जमालुद्दीन आगे बढ़ते हैं। जैसे आगे बढ़े हैं उस पंडितों ने जो 500 जमात में से पंडित थे और उसका गुरु घंटाल जो था बहुत बड़ा गुरु घंटाल था, उनके 500 चेला चपाटे थे। हजरत सरकार मखदूम अशरफ के मुरीद हजरत जमालुद्दीन आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के बाद तो उन पंडितों ने चूटी के लश्कर को भेजा। जैसे चूटियों के लश्कर को भेजा, हजरत जमालुद्दीन ने एक निगाह डाली, तमाम चूटियां जल करके राख हो गई। पान के सिट्ठी का जब ये आलम है तो मखदूम पाक का आलम क्या होगा? मखदूम पाक के निगाहे विलायत का क्या आलम होगा? अब पंडितों ने देखा कि एक मुरीद का ये आलम है जो अभी मुरीद हुआ है। उन्होंने शेरों का लश्कर भेजा। जैसे शेरों का लश्कर भेजा, हजरत जमालुद्दीन ने एक गजबनाक निगाह डाली, तमाम शेर जल करके राख हो गया। अब पंडित ने अपने सोटा को हवा में उड़ाया। जब हवा में उड़ाया तो सरकार मखदूम पाक के आसा मुबारक को हजरत जमालुद्दीन ने कहा, आपने जोगी जयपाल हजरत गरीब नवाज का सुना होगा कि इतना खटखटाया, जोगी जयपाल को इतना खटखटाया कि जोगी जयपाल को कदमों में, ख्वाजा के कदमों में मिला के रख दिया। उसका मिजाज हरा कर दिया था ख्वाजा की जूती ने। और यहाँ मखदूम पाक के छड़ी ने उस पंडित के सोटा को 2 टुकड़ा कर दिया और कदमों में लाके गिरा दिया। अब देखने के बाद कहता है तमाम पंडित के गुरु घंटाल आते हैं, हजरत मखदूम अशरफ के कदमों में गिर गया और कहने लगा कि जो मैंने कमाल दिखाया था वो शैतानी था, लेकिन जो फकीर ने दिखाया है वो रहमानी था। मेरा कमाल शैतानी था, लेकिन फकीर ने जो दिखाया है वो रहमानी था। अब इनके पावर मेरे पावर की कोई हैसियत नहीं है। अब पंडित आकर के हजरत मखदूम पाक के कदमों में गिर गया और कहा हुजूर अब मुझे भी कलमा पढ़ा के मुसलमान बना लीजिए। और जैसे वो पंडित के गुरु घंटाल ने कलमा पढ़ा, तमाम 500 चेले चपाटे कलमा पढ़ के मुसलमान हो गए। हजरत सरकार मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी रदी अल्लाह ताला अन्हु की हुकूमत देखें, हुकूमत, बस एक वाक़या हुकूमत देखें।